एक मिनट। So practically you get almost 15-20% success rate. 12 to 15 बोलती हूँ मैं यूजुअली पेशेंट्स को. क्यूमुलेटिवली ओवर 3 साइकिल्स ऑलमोस्ट 35 to 40% पेशेंट्स कंसीव करते हैं. In case you go for IUI. Now what all determines the success rates? क्या क्या determinants होते हैं to get a good IUI success rate? मेन फोकस विल बी ऑन डिटर्मिनेंट्स ऑफ आईयूआई सक्सेस रेट. आईयूआई हम सबको पता है, सीमेन प्रोसेस करना है, ओव्यूलेशन मॉनिटर करना है, उसके बाद सीमेन को यूट्रस के अंदर डाल देना है. बट व्हेन टू सेलेक्ट अ पेशेंट, विच पेशेंट टू बी टोल्ड कि आपका आईयूआई पे अच्छा रिजल्ट रहेगा, विच पेशेंट टू बी टोल्ड कि हाँ यू नीड टू गो फॉर आईवीएफ, या किस पेशेंट में हम बेटर आउटकम ला सकते हैं, किस तरह से ला सकते हैं, दिस विल बी द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन टुडे. सब लोग जो सुन रहे हैं, patients with abnormal semen parameters like oligospermia, azoospermia, not azo but oligo. Retrograde ejaculation. बाद में आना दे, क्लास चल रही है. am I audible? No ma'am. हेलो हेलो, हाँ जी मैम. एक बार बड़ा बंद कर. हेलो. Yes, ma'am. फाइन. डॉक्टर अंजलि, डॉक्टर. Yes, ma'am. Determinants of Oligo. Spermia or the morphology. Morphology should be normal, but if sperm motility is decreased, then you can go for IUI. Morphology is just give me 2 minutes. So I'll just settle it down. Hello. So yes, where we left. So what determines the success rates? Anybody? Somebody was telling about, I think, morphology and motility. motility. Timing of IUI is most important. Yeah. Timing of IUI. Or Timing. Timing of IUI, yes, it is important. इसके अलावा
Tube should be patent. Tube should be patent, yes. Time That is- There duration. should not be cervical stenosis. Yes, cervical stenosis will be there, तो आप insert ही नहीं कर पाओगे सारा कुछ अंदर पेशेंट में, यूट्रस के अंदर. Endometrial. Tube should be patent. At least one tube should be patent. Endometrium, Hmm. good endometrium, yes, Dr. Anjali. और क्या क्या चीजें? Time Endometrium. duration between preparation of semen and in IUI. डॉक्टर प्रीति, Yes, ma'am. हाँ, आप क्या बोल रहे हो? सीमेंट प्रिपरेशन, Time duration, ma'am. Semen preparation and IUI. time duration of semen preparation is also important. So each and every factor is important when we plan for IUI. So yes, success rates कितने रहने वाले हैं, कैसे रहने वाले? This starts right from your patient selection. So you have to select the right patient. Right patient आपकी नजर में कौन कौन सा रहेगा IUI करने के लिए? एक ने मतलब one we have already discussed that we need to have at least one tube patent before we plan IUI for a patient. Or factors, Ovulation हुई. ovulation होनी चाहिए. Secretary और? admitted. We have to select the right patient depending upon what is the etiology, फीमेल फैक्टर और मेल फैक्टर क्या है, एंड ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी क्या है. थोड़ी थोड़ी बातें ये डिस्कस करूंगी मैं, मे बी प्रैक्टिकल पॉइंट्स इटसेल्फ. व्हेन यू आर डीलिंग विद अ पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी, तो कॉज क्या है उसके ऊपर आपका प्रोग्नोसिस डिपेंड हो जाएगा आईयूआई का. डू यू थिंक मतलब इन योर ओपिनियन हु इज गोइंग टू बी द बेस्ट पेशेंट, कौन कौन से बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं? मैंने ये ऊपर आपकी स्लाइड में शेयर कर दिया, गुड प्रोग्नोसिस एंड पुअर प्रोग्नोसिस पेशेंट्स. Which all patients are good prognosis patients? Male factor बोलेंगे. Plan ovulatory male donor factor. semen cervical factor. Unexplained. प्रैक्टिकली आपके जो पेशेंट्स एनओव्युलेटरी होते हैं, सपोज पीसीओ के पेशेंट्स हैं, दे गिव यू एक्सीलेंट रिजल्ट्स ऑन आईयूआई प्रोवाइडेड ट्यूब्स ठीक ठाक हैं पेशेंट की और कोई और फैक्टर नहीं है. तो एनओव्युलेशन एंड अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, दीज आर द टू मेन categories where IUI gives you a very good success rate. Cervical factor maybe it's fairly good, but cervical factor लिखने के लिए है, but we don't actually test for any cervical factor in nowadays. Why in anovulatory cycles? Because anovulation में patient ovulate नहीं कर रहा है. Suppose PCO patient है आपका, PCO patient को आपने ovulate कराया, तो सिर्फ उसका infertility का factor क्या है? Egg नहीं बन रहा है. Egg बनाया तो इसका सक्सेस रेट हो जाएंगे वो तो. सॉरी डॉक्टर अंजलि, मैम अगर नेचुरल, हेलो मैम, Natural भी- आईयूआई का क्या बेनिफिट फॉर द नेचुरल? in this case, in case patient is not conceiving with your natural cycle, suppose आपने ovulation induction बहुत सारे cycles दे दी, I'm not talking about कि anovulation का patient आया तो directly IUI उसको offer कर दो. It's only when she has already tried naturally and she is still not conceiving with all the efforts. In that case, you can plan for IUI. But she is a good prognosis patient in case you categorize these patients. अब कुछ patients आपके, what are the female factors you deal with? And Not ovulation. in IUI. Infertility में क्या क्या? नहीं, infertility में कौन कौन से factors होते हैं females में? And ovulation. Anovulation. Hypopisius, hyperprolactinemia और Hormone. WHO क्या बोले? Endocrine factors. Endocrine factors. So Anatomy. broadly, hyperprolactinemia. Distorted cavity. yes, Hostile cervix. Thickened yes, cervical mucus. Endometriosis. Tubal factors. yes. तो अगर आप कैटेगराइज करो, देयर कैन बी प्रॉब्लम्स विद ओव्यूलेशन, ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर्स हैं आपके. दूसरा है आपके ट्यूबल फैक्टर्स. ट्यूबल फैक्टर्स में बहुत बार पेशेंट्स के लिए अच्छा प्रोग्नोसिस नहीं होता है अगर आपकी ट्यूब्स डैमेज है. सपोज आपकी HSG पे ट्यूब्स खुली हैं, बट उसमें आपको ट्यूब्स कैसी दिख रही है? पाइप स्टेम अपीयरेंस दिख रही है. तो डू यू थिंक योर पेशेंट इज गोइंग टू कंसीव? नहीं, बिकॉज आप जब HSG करा रहे हो उसमें आप सिर्फ देख रहे हो डाई आ रही है कि नहीं आ रही है, बट
actual में आपका tubal function is there or not, the cilia inside the tube are doing their function properly or not, you cannot determine. So yes, there are certain patients which will be having good prognosis. So unexplained cervical factor, anovulatory, mild male factor, donor semen वाले patients अगर female is absolutely normal, बहुत जल्दी conceive करते हैं. So these are good prognosis patients. डॉक्टर अंजलि ने जो सवाल किया एनओबुलेशन में, उसमें एनओबुलेशन बोलने का मतलब यही है कि दे आर बेटर प्रोग्नोसिस पेशेंट्स एज कंपेयर टू द सेकंड कैटेगरी, जिसमें कि मेल फैक्टर बहुत ज्यादा सिवियर है. सपोज द काउंट इज लेस देन 5 million and the motile count is less than 5%. In that case, you are not dealing with a patient who will conceive with IUI. ट्यूबल फैक्टर है किसी भी तरह का, जो मैंने डिस्कस किया कि मे बी ट्यूब इज पेटेंट बट योर पेशेंट हैड सम हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस और आपको एचएससी पे वैसे ट्यूबल मतलब मोफोलॉजी अच्छी नहीं लग रही है. That cases are also the ones where conceptions will be difficult. Severe pelvic adhesions है, पहले कोई सर्जरी हो रखी है, इंट्राऑपरेटिव नोट्स आपके पास है कि बहुत ज्यादा adhesions है, या endometriosis के पेशेंट्स हैं, severe endometriosis. These are the patients where the success rates with IUI will be lower. Even the data in case we see बहुत सारी स्टडीज में है कि unexplained और anovulatory में तो सक्सेस रेट्स ऑलमोस्ट 15-16% तक पहुंच जाते हैं. But when you are dealing with patients who are having severe endometriosis, so hardly the chances of success rates are 3 to 4% in a single cycle of IUI. This slide is clear, Dr. Anjali? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So you select your patient depending upon what are the factors. Selection का मतलब उसे at least हम prognosis थोड़ा सा explain करें कि कितने chances उसके रहेंगे IUI के लिए. Now this is the one I was talking about. Unexplained में अच्छे results आते हैं आपके, mild male factor में उससे कम, anovulation में still better, endometriosis के patients आपके बहुत जल्दी conceive नहीं करते हैं. Second important factor is female age. Female age किसी ने नहीं बोला अभी तक. Hello? Yes, yes. Female age. This is the most important factor when we are calculating कि किस patient का success rate क्या होने वाला है. In case I am doing IUI in a patient who is hardly 25-26 years old, and I am doing IUI in a patient who is 40 years old, do you think there is going to be a difference? Yes. Yes, definitely. There is going to be a difference because आपका age के related क्या होता है? The quality of egg and the number of eggs will decline. More importantly, IUI में quantity की बात मैं नहीं करूंगी. Quantity तो हमें 1 या 2 follicles ही चाहिए होते हैं IUI में. But quality wise, when your patient is already 40 years, तो उसमें IUI के success rates are not so great. So yes, when you plan IUI for your patient, पूरे का पूरा उसका analysis करो कि किस patient को हम IUI advise कर रहे हैं. So age is the strongest predictor of success. जब आपके patients 30 years से कम हैं, you are going to have good results. In case your patient is more than 40 years, you expect कि outcome बहुत अच्छा शायद नहीं हो सकता है. There is a guideline, basically Indian guideline तो नहीं बोलूंगी, but there is a guideline by, I think it is by ASHRAE और ASRM, कि अगर आपका patient 36 या 38 years के बीच में है, तो भी उसको आप IUI कर सकते हो, बट प्रोवाइडेड कि आप 3 साइकिल्स में उसका ज्यादा लंबा टाइम खराब ना कराओ. 1 year में अगर आप उसके 3 साइकिल्स ले गए आराम से, 1 year you can give to that patient. But in case your patient is already between 38 to 40 years, secondary infertility है, in that case you can consider your patient for IUI. Primary infertility को try to take that patient to a fast track treatment, maybe towards IVF, in case your patient is agreeing with you. So this is how age impacts. 20-30 years पे almost 15% और 40 years तक पहुंचते this is hardly 2.5 to 3% success rate when you are doing IUI for your patients. This is pregnancy rate and delivery rate per cycle. Different data हैं, but more or less this is to be taken into mind that more than 40 years definitely IUI के success rates बहुत कम होने वाले हैं. I am stressing this because we get reference from outside. 40-41 years पे stimulate करके मेरे पास patients आए हुए होते हैं कि इसका IUI करना है. I am not able to say anything to the patient because this is already done by the referral doctor. But yes, in case I am able to convince you all, तो शायद मेरे पास ये चीजें कम आएंगी. So we'll be able to actually counsel these patients that they are candidates for IVF. Am I clear? Yes, ma'am. Now equally important is the male factor. Male factor में क्या-क्या importance, क्या-क्या important हम लेते हैं? What all do you think? Motile count and morphology बोली थी किसी ने शुरू में. Motility and morphology. Motility and morphology. What Count, else? count Yes. also.
काउंट, मोटिलिटी एंड मोर्फोलॉजी इज इम्पोर्टेंट। Morphology. मोर्फोलॉजी फिर भी हम शायद कभी कभी इग्नोर करते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोर्फोलॉजी अगर आप हमारी रिपोर्ट्स में देखो तो 4% से कम ही आती हैं, बट मोर्फोलॉजी प्रैक्टिकली आई इग्नोर इन पेशेंट्स एक्सेप्ट दोज हु आर हैविंग सिवियर डिफेक्ट। सपोज पूरे का पूरा ग्लोबोजूस्पर्मिया शायद हमने डिस्कस किया था अपनी लास्ट टू लास्ट क्लास में मेल फैक्टर में। ग्लोबोजूस्पर्मिया में क्या होता है कि हेड के ऊपर आपका एक्रोसोम नहीं है। सपोज आपको ऐसी मोर्फोलॉजी मिल जाती है कि ग्लोबल ग्लोबोजोस्पर्मिया है, पूरे की पूरी स्पर्म आपकी ऐसी दिख रही है जिसमें हेड पे एक्रोसोम ही नहीं है, इन दैट केस स्पर्ट फेलियर रहेगा, उसमें आईयूआई के सक्सेस रेट नहीं रहेंगे। बट मोर्फोलॉजी आपको अगर कम भी मिल रही है तब भी आई विल नॉट डिस्करेज माय पेशेंट फ्रॉम गोइंग फॉर आईयूआई, प्रोवाइडेड मोटाइल काउंट और आपका टोटल काउंट इज गुड इनफ। When you look at your patient, so this is how WHO defines the normal semen analysis. हमारी लैब की रेंजेस हमें क्या क्या नजर आती है नॉर्मल रेंजेस पे? पर्सनल एक्सपीरियंसेस, नॉर्मल रेंज क्या रहती है लैब की फॉर सीमेन एनालिसिस? Volume 1.5 ml. और Motility more than 40%. More than Morphine more than 4%. डॉक्टर नताशा ने तो पढ़ा हुआ है सारा, मगर मैं बात कर रही हूँ प्रैक्टिकली जब आपके पास रिपोर्ट्स आती हैं। सपोज यू गेट अ सीमेन एनालिसिस, आई थिंक इधर जिंदल में लाल पैथ लैब की होती हैं सारी रिपोर्ट्स, तो आपका रेफरेंस रेंज क्या रहता है इनकी लैब्स का? मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट कि कितना देते हैं, बट बहुत बारी लैब्स में रेफरेंस रेंज इज मोर देन 60 मिलियन, मोर देन 30 मिलियन या 25 मिलियन, ऐसा करके रेंज देखने को मिलता है। हाँ होता है। पर होता है ना आजकल तो ऐसा? WHO क्राइटेरिया फॉलो करते हैं सारे। नहीं करते मैम, नहीं करते। मैं तो लाल देखती का मेरे को नहीं पता है, बट प्रैक्टिकली बहुत सारी लैब से ऐसी आती हैं जिसमें फिर भी काउंट लिख के आता है मोर देन 60 मिलियन टू बी नॉर्मल रेफरेंस रेंज में, और पेशेंट बेचारा 30 मिलियन पे घबरा जाता है कि मेरा तो आधा ही रह गया जी, 50% रह गया सारा कुछ। होता है नहीं होता है? हमारे तो एक्चुअली वी गेट रिपोर्ट्स फ्रॉम द आर सरकारी लैब ओनली, तो दे तो फॉलो सरकारी लैब WHO. की रेफरेंस रेंज WHO वाला फॉलो कर रहे हैं? या ठीक है, वो आपने इनको बोला होगा करने के लिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो डू चेक द सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट फॉर योर पेशेंट, एंड ऑफ कोर्स यू चेक कि उन लोगों ने आपको लोअर रेफरेंस रेंज क्या दी हुई है। WHO 2010 क्राइटेरिया डिफरेंट था, 2021 थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 2021 criteria says volume to be 1.4 ml, concentration 16 million per ml, motile count to be 42% of total motility and 30% progressive motility. मैं थोड़ा सा बीच में मेल फैक्टर गुजार रही हूँ इसके बीच में, क्योंकि टोटल मोटिलिटी और प्रोग्रेसिव मोटिलिटी इज इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर डीलिंग विद पेशेंट्स ऑफ आईयूआई। व्हेन वी कैलकुलेट मोटिलिटी, तो 4 तरह की डिविजन होती है मोटिलिटी में। फर्स्ट इज फास्ट फॉरवर्ड, सेकेंड इज योर स्लोली फॉरवर्ड, स्लो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी। थर्ड इज नॉन प्रोग्रेसिव, मतलब शुक्राणु वहीं पे दिख रहे हैं, हिल रहे हैं। एंड द फोर्थ इज नॉन मोटाइल, मतलब डेड हैं कि जिंदा है आपको नहीं पता चलेगा, बट दे विल बी इमोटाइल। व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, तो उसमें आपके ग्रेड ए और बी, मतलब पहली कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी कैलकुलेट टोटल होके आती है। वाइटैलिटी 54%, मतलब जिंदा दिखने वाले लाइव स्पर्मेटोजोआ शुड बी एटलीस्ट 54%। मोर्फोलॉजी 4%। अब जब हम सीमेन एनालिसिस करा रहे हैं, तो व्हाट ऑल डू यू सी व्हेन यू टेक अप योर पेशेंट कि हाँ अब इसमें आईयूआई करना है? क्या इस सीमेन वैल्यू के ऊपर हम कुछ प्रोग्नोस्टिकेट कर सकते हैं पेशेंट का आईयूआई के रिगार्डिंग? वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर IUI इज ओनली 0.5 0.8 ml. तो वो मैम प्रोसेसिंग के बाद होएगा ना, हाँ प्रोसेसिंग हाँ से हाँ पहले हाँ, आपको कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो चाहिए होएगा। तो वही है 1.5 ml ही लेते हैं। हाँ, जितना भी आ रहा है उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद आपको जो आपने इंसेमिनेट करना है दैट विल बी 0.5 ml, बट उसमें आपको मोटाइल काउंट चाहिए। तो लेट अस डिस्कस दिस स्लाइड, क्योंकि जो भी हमारे आउटकम्स होते हैं दे ऑल डिपेंड अपॉन व्हाट वी गेट और व्हाट वी टेल एज टोटल मोटाइल स्पर्म काउंट। अब टोटल मोटाइल स्पर्म काउंट क्या है? एनीबडी? तो 5-15 क्या फॉर्मूला लेते होते मैम? 5-15 है तो IUI हो सकता है। 5-15 तो अलग चीज है, बट हाउ टू कैलकुलेट दिस? नहीं पता।
अब टोटल मोटाइल स्पर्म काउंट क्या है कि आपके पास मोटाइल काउंट कितना आ रहा है पूरे के पूरे प्रिपेयर्ड सैंपल में। टोटल मोटाइल स्पर्म काउंट, मोटाइल स्पर्म काउंट आपके सैंपल में कितना, इट कुड बी प्री वॉश, इट कुड बी पोस्ट वॉश। प्री वॉश मतलब वॉश करने से पहले कितना दिख रहा है, पोस्ट वॉश मतलब वॉश करने के बाद कितना दिख रहा है। प्री वॉश का बहुत ज्यादा कोरिलेशन नहीं माना जाता है, बट पोस्ट वॉश टोटल मोटाइल स्पर्म काउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो भी आईओआई में यूटिलाइज होना है दैट इज अ मोटाइल काउंट इटसेल्फ। और कैलकुलेट कैसे होता है, यू डिटर्मिन मोटाइल स्पर्म काउंट वॉल्यूम, पूरे का पूरा वॉल्यूम कितना है आपके पास, मल्टीप्लाइड बाय कंसेंट्रेशन और मल्टीप्लाइड बाय मोटाइल काउंट। ये नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ एक बार आपको। टोटल मोटाइल स्पर्म काउंट इज वॉल्यूम ऑफ सेमेन सैंपल, और सेमेन सैंपल में टोटल नंबर ऑफ स्पर्म कितने दिख रहे हैं आपको, और परसेंटेज ऑफ नॉर्मल मोटिलिटी क्या है। और पोस्ट वॉश, दिस इज अबाउट द पोस्ट वॉश मोटाइल काउंट। इन केस यू सी द आईयूआई रिपोर्ट्स, हमारे पास से जो आईयूआई होकर जाते हैं उनके एंड में एक टोटल मोटाइल स्पर्म काउंट का कॉलम होता है कि कितना हमें मिल रहा है टोटल सैंपल में मोटाइल काउंट। In case you have a count which is more than 9 million, तो आपके outcomes are going to be good. In case you are having a sperm count, motile sperm count, जिसमें कि it is less than 5 million, तो आपका outcome होने वाला है थोड़ा कम. Although even in case it is less than 0.25, उसमें भी pregnancies have been reported. तो अगर आप ये ग्राफ देखो तो ये ग्राफ से क्या पता चल रहा है, मैं समझा नहीं पा रही हूँ आज, मुझे लग रहा है। हेलो, Yes, ma'am. Yes. तो टोटल मोटाइल स्पर्म काउंट इज इंपॉर्टेंट। टोटल मोटाइल स्पर्म काउंट जब भी आपकी लैब करके दे रही है, शायद एंड में आपको एक कॉलम बना के देंगे कि क्या आप इंसेमिनेट कर रहे हो पेशेंट के अंदर। इन केस इट इज मोर देन 10, मोर देन 9, इट इज गोइंग टू हैव अ गुड आउटकम। 5 to 9 आपका थोड़ा सा लोअर साइड पे, बट लेस देन 5 उससे भी कम साइड पे। बट इन केस यू सी अ ग्राफ, तो इसमें ग्रेजुअल डिक्लाइन है, देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्लाइन। और किसी भी रिपोर्ट के ऊपर ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं होती, you have certain chances of pregnancy. तो is there any cut off जहां पे आप पेशेंट को बोल दोगे कि नहीं आईयूआई बिल्कुल नहीं कर सकते हम लोग? Five. हम less than 5 पे. लेस देन 5 पे आपके आउटकम्स कम रहेंगे, बट अभी तक कोई भी ऐसा कट ऑफ सेटअप नहीं है जिसमें कि हम मना कर दे पेशेंट को आईयूआई के लिए। प्रैक्टिकली हम लोग कई बार रिफ्यूज भी करते हैं अगर हमारे पास बहुत अच्छा काउंट नहीं आ रहा है। बट व्हाट लिटरेचर सेज कि किसी भी काउंट पे सक्सेस रेट्स आर डिटर्मिन्ड बाय द टोटल मोटाइल काउंट। तो आप किसी भी काउंट पे कर सकते हो आईयूआई, प्रोवाइडेड यू एक्सप्लेन योर पेशेंट की सैंपल हमारा ऐसा है, सक्सेस रेट उसको बता के। सपोज मेरा पोस्ट वॉश मोटाइल काउंट आ रहा है लेस देन 0.25, तो आई हैव टू एक्सप्लेन माय पेशेंट चांसेस आर गोइंग टू बी हार्डली 1%, 2%। आप अगर कराना चाहते हो विल प्रोसीड, अगर आप नहीं कराना चाहते हो तो विल स्टॉप दिस साइकिल। तो दिस इज हाउ यू प्रोग्नोस्टिकेट योर पेशेंट, बट नॉट टू रिफ्यूज कि बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकते हैं। फाइन। Yes, ma'am. नाउ दिस स्लाइड आई हैव पुट इन डेलिबरेटली, क्यों, क्योंकि बहुत बार पोस्ट वॉश हम नहीं करते हैं। इट इज ओनली द प्री वॉश सैंपल दैट वी आर यूजिंग। प्री वॉश मतलब आपके पास टोटल रिपोर्ट आ गई, जब उस रिपोर्ट में से आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना आपके पास टोटल मोटाइल स्पर्म काउंट बन रहा है। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। वॉल्यूम कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्पर्म कितने हैं, एंड परसेंटेज ऑफ नॉर्मल मोटिलिटी क्या है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट टीएमएससी। अब अगर आपका प्री वॉश मोटाइल काउंट, दिस इज फॉर प्रोग्नोस्टिकेटिंग योर पेशेंट, थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए, बट कट ऑफ कुछ नहीं है। अभी मैं बोल रही हूँ कट ऑफ कुछ नहीं है किसी भी पेशेंट के आईयूआई के लिए। इन केस प्री वॉश टोटल मोटाइल स्पर्म काउंट इज गोइंग टू बी मोर देन 5 million, यू कैन प्लान योर पेशेंट फॉर आईयूआई। अगर आपका 1 to 5 million है, इस पेशेंट में यू कैन काउंसल योर पेशेंट फॉर आईवीएफ। इन केस इट इज लेस देन 1 million per ml, यू कैन प्लान डायरेक्टली इक्सी फॉर योर पेशेंट। कंफ्यूजिंग हो गया सबके लिए? कंफ्यूजिंग हो गया सबके लिए? No, ma'am. आ गया समझ। फाइन। नाउ मेल फैक्टर में कुछ कुछ और चीजें भी रोल प्ले करती हैं जो कि मानी जाती हैं, बट दे आर नॉट एट ऑल मतलब प्रूवन वाली नहीं है। वन इज डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स,
DFI is something DNA breaks in the sperm. There are special tests which are available. अगर DFI आपका ज्यादा है, more than 25% आ रहा है, so in that case you may have a poorer outcome in IUI cycles. But pregnancies can happen with a high DFI also, but उसमें abortion का risk बढ़ जाता है. So you can have pregnancy with IUI with DNA fragmentation index which is more than 25%, but abortion risk will be higher in this patient relative to a normal couple. Paternal age जितनी बढ़ती है उतने थोड़े थोड़े chances of pregnancy will be lower with semen factor with the same semen values, but practically speaking paternal age का भी बहुत ज्यादा रोल नहीं है. ओबेसिटी में देखा गया है कि सीमेन वैल्यूज मे बी टुवर्ड्स अ लोअर साइड, बट इन केस ओबीस पेशेंट में सीमेन वैल्यूज नॉर्मल आ रही हैं तो आपका आईयूआई का सक्सेस रेट विल बी द सेम जो हमने डिटरमिन किया अपने सीमेन सैंपल के साथ. Now second important thing is we had discussed about the etiology. So good prognosis patients are the ones where you have unexplained anovulation, cervical mild factor, male mild factor, donor semen when you are donor using. semen. फीमेल्स में अगर आप लेस देन 30 पे कर रहे हो यू विल गेट बेटर आउटकम्स, मोर देन 40 पे कर रहे हो तो पेशेंट्स मतलब इतने अच्छे हमने सेलेक्ट नहीं किए अपने लिए, सक्सेस रेट विल बी गोइंग टू बी लोअर. थर्ड क्राइटेरिया इज ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी. अब जितनी लंबी ड्यूरेशन इनफर्टिलिटी की होती रहेगी पेशेंट की उतने सक्सेस रेट्स आपके डाउन होते जाएंगे आईयूआई से. व्हाई? नॉर्मल फिकंडिटी क्या है फीमेल्स की इन अ सिंगल साइकिल? 10 to 15. 18-20%, लगभग 18 to 20%. बाकी all will depend upon the age of the female, but average 18 to 20%. और IUI में हम सक्सेस रेट कितना बोल के भेजते हैं पेशेंट को? 15 to 15 to 20 या 12 से 15. तो नॉर्मल से भी मैं तो कम बता के भेज रही हूँ कि नॉर्मल चांस से भी कम है. तो इन केस योर पेशेंट इज ऑलरेडी मैरिड फॉर 10 years, सपोज अ पेशेंट कम्स टू यू, 10 साल की मैरिड लाइफ है, कोई ऐसा फैक्टर नहीं है, अनएक्सप्लेन्ड काइंड है, तो उसमें अगर मैं आईयूआई करने वाली हूँ तो माय सक्सेस रेट इज गोइंग टू बी लोअर बिकॉज 10 साल में हर 12 महीने 12 into 10 कितने महीने उसने नेचुरल ट्राई कर लिया? 300. शी हैज ट्राइड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. 36. तो आईयूआई से शायद हम उसको बहुत ज्यादा अच्छा आउटकम नहीं दे पाएंगे. So duration of infertility is also important when you are choosing your patient for IUI. In case your patient is having मतलब practically बहुत सारी जगह पे बहुत सारे years का है, no cut off value, but yes practically I also take it more than 5 to 6 years. उसमें chances आपके थोड़े से drop out हो जाते हैं IUI के. Now इसके बाद आपने patient select कर लिया अपना, कैसे उसे stimulate करते हो? How do you stimulate your patient individually? सबसे अपना बताइए. Letrozole or clomiphene. Letrozole or clomiphene, yes. Plus HMG. Plus HMG. So you can go for oral ovulation induction. You can go for injectables also, gonadotropins also. It depends from patient to patient. जब आप डिसाइड कर रहे हो किसी के लिए भी प्रोटोकॉल, दैट विल वेरी कि आप क्या यूज करते हो, मतलब डॉक्टर्स एक्सपर्टीज तो नहीं, कंफर्ट बेसिकली. दूसरी चीज है कि पेशेंट किस चीज को रिस्पॉन्ड कर रही है. सपोज यू गेट अ पेशेंट हु इज पीसीओ और उसने बहुत सारी क्लोमिफेन सिट्रेट खा रखी है पिछले 6 महीने में एंड शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो प्रोबेबली यू विल शिफ्ट दैट पेशेंट टू सम अदर ड्रग, और या फिर आप क्लोमिफेन का शायद डोज चेंज करोगे इन केस प्रायर रिस्पॉन्स नहीं है. तो स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल कुछ ऐसा फिक्स नहीं है. लास्ट क्लास में हमने स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल्स भी डिस्कस किए थे. यू हैव टू इंडिविजुअलाइज कि आपको क्या यूज करना है किसी भी पेशेंट के लिए एंड किस चीज को बेटर रिस्पॉन्ड कर सकती है. आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स, बट दीज आर हाउ द सक्सेस रेट्स विल वेरी. In case a patient is trying on her own without any treatment, she has a this is for the patients who are actually having infertility. बहुत पुराना है ये data, but this is still in most of the मतलब literature which is discussed. In case patient is trying on her own without any treatment, you have a success rate of 1.3 to 4.1%. You are doing IUI without any ovarian stimulation, drug के बिना आप कर रहे हो, तो you have a slightly lower chance of success rate 3.8%. क्लोमिफेन यूज कर रहे हो इंटरकोर्स के साथ तो 5.6%, क्लोमिफेन विद इंसेमिनेशन 8.3%. अगर आप इंजेक्टेबल मेडिसिन यूज कर रहे हो विथ टाइम्ड इंटरकोर्स मे बी 7.7%. इंजेक्टेबल मेडिसिन और गोनाडोट्रोपिन्स विद IUI यू हैव 17.1%. सो हाईएस्ट सक्सेस रेट किसमें मिल रहा है हमें?
Injectable. Injectable gonadotropins along with IUI. तो फिर क्या सबको इंजेक्शन से देना शुरू करें? No. No. Why? Cost factor. Cost factor. दूसरा Rapid Chances are reduction still- of AMH and ovarian reserve with time. डॉक्टर नताशा ने क्या बोला? There will be Ma'am, reduction in ovarian reserve. Rapid decline. Rapid decline. It will not decline. It will not decline. मैं दोबारा फिर बेसिक्स पे जाती हूँ इस पॉइंट पे, क्योंकि डिक्लाइन नहीं होगा अगर आप बार बार स्टिमुलेट कर रहे हो। हमारी ओवरी में क्या हो रहा है कि देयर इज साइक्लिकल रिक्रूटमेंट। साइक्लिकल रिक्रूटमेंट में क्या हो रहा है, कुछ फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं हर महीने, और वो फॉलिकल्स में से एक डोमिनेंस अटेन कर लेता है और बाकी सारे क्या हो जाते हैं? Atresia. एट्रेटिक हो जाते हैं। तो जब आप किसी पेशेंट को स्टिमुलेट कर रहे हो तो पूल में से, ओवेरियन रिजर्व के पूल में से आपके वही फॉलिकल ग्रो करेंगे जो ऑलरेडी रिक्रूटमेंट फेज में आए हुए हैं। साइकिल में ऑलरेडी ग्रो करने वाले थे, दे वर गोइंग टू बी एट्रेटिक। तो आपने एट्रेटिक होने से बचाया उन फॉलिकल्स को ग्रो कराया, बट आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर पा रहे मतलब बाकी जो बचे हुए हैं उनमें से आप कुछ नहीं ले रहे हो। Ovarian reserve is not going to decline in case we are repeating, in case we are treating our patients repeatedly either with clomiphene, letrozole और gonadotropin। हम सिर्फ उस रिजर्व में से जो ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं उनको उठा रहे हैं, हम रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे। Ma'am, OHSs can occur. Yes, this is one thing I was trying to listen कि when you are giving oral medicine, ovarian hyperstimulation के chances कम है, but with injections you are having higher rates of ovarian hyperstimulation. That is why injectable medicines थोड़ा सा sparingly use करते हैं। One is cost factor, another is your ovarian hyperstimulation का डर। क्या हम टब में नहा सकते हैं? ठीक है। Now another success factor, जब आपने स्टिमुलेशन शुरू कर दिया, आपने दे दिया क्लोमिफेन, लेट्रोजोल या आपने गोनाडोट्रोपिन पे डाल दिया, उसके बाद आपको क्या शुरू करना है? मॉनिटरिंग पेशेंट की। Yes, ma'am. मॉनिटरिंग जब भी आप कर रहे हो तो अल्ट्रासाउंड इज द बेस्ट टूल फॉर मी। आई गाइड एवरीथिंग बेस्ड ऑन माय अल्ट्रासाउंड। हार्मोनल रिपोर्ट्स या कुछ डे 2 डे 3 पे डे 2 डे 3 पे FSH LH और E2 कौन कौन कराता है? No. मैम मैं करवाती हूँ on day 2. ऑन डे 2 प्रैक्टिकली, मतलब मेरी जो मानना है, इन केस यू आर सस्पेक्टिंग अ पेशेंट हु इज हैविंग हाइपो उसमें तो आपका इसका डेफिनेटली रोल है, बट जिस पेशेंट में नॉर्मल अल्ट्रासाउंड दिख रहा है, ओवरीज अच्छी दिख रही है, उसमें प्रैक्टिकली आई डोंट गो फॉर FSH LH। Ma'am, E2 serum E2 levels. की भी जरूरत नहीं होती है। E2 we go for only in those patients where we see a cyst। सपोज मेरे को एक cyst नजर आ रही है और पेशेंट को मेरे को स्टिमुलेट करना है, in that case I'll go for E2 report so that I should come to know कि this is not a cyst which is secreting estradiol। अगर वो E2 लेवल आपका कम आ रहा है, you can start your stimulation without any kind of interference। अगर आपका E2 रिपोर्ट ज्यादा आ रहा है तो in that case you expect कि patient might respond poorly, in that case you need to skip that cycle। तो practical importance FSH LH only in hypo। E2 रिपोर्ट तब जब आपको स्टिमुलेशन देनी है और आपको सिस्ट नजर आ रही है। जो हम IVF शुरू करते हैं उसमें प्रैक्टिकली वी नेवर गो फॉर E2 लेवल्स, वी नेवर गो फॉर FSH और वी नेवर गो फॉर LH लेवल्स बिफोर वी स्टार्ट द स्टिमुलेशन। ठीक है। Yes, ma'am. इवन फॉर IUI दिस होल्ड्स गुड। IUI में तो वैसे ही आपका सक्सेस रेट जब हम बोल रहे हैं 12-15%, उसमें तो कम से कम खर्चा कराना है किसी भी साइकिल में हमें पेशेंट का, तो उसमें एक्स्ट्रा रिपोर्ट्स कराने की कोई भी जरूरत नहीं है। पेशेंट जस्ट गो फॉर अ डे 2 स्कैन। डे 2 पे अगर आपकी ओवरीज आपकी बेस लाइन लिख दी किसी ने और यूट्रस नॉर्मल है, इन दैट केस यू कैन स्टार्ट विद द स्टिमुलेशन। अब जब आपका स्टिमुलेशन चल रहा है, वी हैड सीन इन अल्ट्रासाउंड क्लास कि उसमें हमें फॉलिकुलर ग्रोथ देखना है और एंडोमेट्रियम देखना है। दोनों अगर कोहेरेंट हैं कि एंडोमेट्रियम इज एक्सीलेंट, फॉलिकुलर ग्रोथ इज एक्सीलेंट, दैट मीन्स साइकिल आपका बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है। Monitoring, I'm not going into detail, but you have to see both of the things together because
डॉक्टर प्रीति ने आई थिंक पॉइंट रेज किया था कि एंडोमेट्रियल थिकनेस हमारी अच्छी होनी चाहिए प्रायर टू वी गो फॉर IUI. सो थिन एंडोमेट्रियम पेशेंट्स थोड़ा सा लो प्रोग्नोसिस होता है, ऐसा नहीं कि कंसीव नहीं करते हैं, बट देन प्रोग्नोसिस विल बी स्लाइटली लोअर. In case you have a good endometrium, आपका endometrium 7 mm से ज्यादा है, you have a good prognosis for your patient. So just look at both the things कि आपका ovarian follicular growth क्या है and endometrium कैसा दिख रहा है in case you are planning IUI for your patient. Dr. Shalini is with me. तो when to trigger, अब कब ट्रिगर करते हो आप? साइज आप देखते जा रहे हो, मॉनिटरिंग करते जा रहे हो, एंडोमेट्रियम अच्छी हो गई है, फॉलिकल आपका ग्रो कर रहा है, कब ट्रिगर दे देना है पेशेंट को? 18 to 20 mm. Dominant follicle 18 to 20, endometrium 7 to 8. Yes, dominant follicle 18 to 20 and Endometrium endometrium 7. बट क्लोमिफिन साइकिल्स या लेट्रोजोल साइकिल्स अगर हम देखें ना, उसमें कभी कभी आपकी एंडोमेट्रियम थिन्ड आउट हो रही होती है. समटाइम्स दे आर नॉट When we can laminar. There was a paper, I think I'll share, दोबारा से मिलेगा वो तो. In clomiphene cycles, they have seen that you get a better success rate when you are triggering at 21 to 22 millimeters. 22. हाँ, थोड़ा ज्यादा फॉलिकल बन जाएगा तो उस केस में यू गेट अ बेटर प्रेगनेंसी रेट इन क्लोमिफिन साइकिल्स. एंड गोनाडोट्रोपिन साइकिल्स हम बहुत लंबा नहीं खींचते हैं, 18-19 mm के ऊपर ट्रिगर कर देते हैं गोनाडोट्रोपिन साइकिल. तो ये क्लोमिफिन में अगर मेरे पेशेंट का फॉलिकल छोटा है, एंडोमेट्रियम उसकी अच्छी नहीं है, तो आई जस्ट वेट फॉर 1 or 2 days. फॉलिकल साइज आप 21-22 होने दो आराम से, उसके बाद ट्रिगर करो तो यू विल बी एट अ better outcome. This point is clear? Yes, ma'am. Yes. एक बार बोला. अब ट्रिगर तो आपने कर दिया, बट कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनमें आपको ट्रिगर नहीं करना है. कब नहीं करना है, इट इज इंपॉर्टेंट. डॉक्टर अंजलि ने बोला था OHSS हो सकता है, तो किन पेशेंट्स में आप सस्पेक्ट करोगे कहीं OHSS ना हो जाए HCG देंगे Multiple तो? follicles. Multiple dominant follicles are Follicles there. are there. Yes, multiple follicles are there. और इन दैट केस आपके रेडियोलॉजिस्ट को जस्ट, अगर आप खुद कर रहे हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर आप खुद नहीं कर रहे हो, टेल योर रेडियोलॉजिस्ट दैट यू नीड टू सी कि कितने फॉलिकल्स आपको छोटे वाले दिख रहे हैं. Guideline goes more than 4 follicles larger than 18 millimeter, more than 8 follicles larger than 12 millimeter, estradiol level more than 1500 to 2000. estradiol level practically we are not doing. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आती है, किसी भी लैब में आप E2 लेवल भेजो तो आपके अल्ट्रासाउंड के साथ वो कभी भी कोरिलेट नहीं करता. दिस इज समथिंग वी फेस इन हिसार. E2 लेवल में कराती हूँ किसी किसी के, बट वो बड़े अनमने मन से कराए जाते हैं कि पता नहीं क्या रिपोर्ट आएगी. Ma'am, when to do estradiol levels? Ma'am, When? what day eat? For this, Okay. for your OHSS, Yes, ma'am. When you are seeing suspect. more of follicles, when you are seeing more of follicles, suppose आपको 5-6 follicle दिख रहे हैं, in that case you can go for estradiol levels, but then also you can skip this estradiol level अगर आपको अल्ट्रासाउंड पे दिख रहे हैं. मतलब आपका E2 अगर कोई रिपोर्ट करेगा कि 800 आ रहा है और आपको फॉलिकल आपके 5 दिख रहे हैं, तो मैं फिर भी अपने अल्ट्रासाउंड के ऊपर भरोसा करके कैंसिल करूंगी साइकिल. Okay. So this is theoretical क्योंकि each follicle, each dominant follicle will secrete around 180 to 200 picogram of estradiol. तो अगर आपके फॉलिकल 2000 तक हैं तो आप 2000 डिवाइडेड बाय 200 कर दो, मतलब 10 फॉलिकल एक्सपेक्ट कर रहे हो, छोटे बड़े. तो इन दैट केस यू कैन स्किप दिस साइकिल. बट प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस स्टिल, estradiol थ्योरेटिकल है बट प्रैक्टिकली आई वुड से आई गो विद माय अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स. और मोर नोटोरियस क्या होते हैं, ये 12 मिलीमीटर वाले फॉलिकल्स. आपने 18 वाले तो आपकी रेडियोलॉजिस्ट से रिपोर्ट कर दिया कि 18-20 kg इतने हैं, 12 वाले आपकी रिपोर्ट नहीं किए. जब आप HCG देते हो तो उसके इफेक्ट में बहुत बार ये मीडियम साइज फॉलिकल्स फूलने शुरू हो जाते हैं, दे स्टार्ट ग्रोइंग. और जब ये ग्रो कर रहे होते हैं दे विल स्टार्ट सिक्रीटिंग फ्लूइड. तो इसी फ्लूइड के कारण से आपका OHSS हो रहा है. तो whenever you see larger follicles, talk to your radiologist कि सर छोटे वाले और कितने हैं बता दो, ताकि उस हिसाब से हम ट्रिगर करें. प्रैक्टिकली 3 से ज्यादा अगर मेरे को दिख रहा हो तो आई नेवर ट्रिगर माय पेशेंट. रेयरली अगर लग रहा हो कि पेशेंट कंसीव नहीं कर रहा है. एक आधे पेशेंट मैंने किया था, आई थिंक शी हैड 4 follicles, शी वाज नॉट कंसीविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम,
तो मैंने थोड़ा सा उसको बोल के किया कि लेट अस ट्राई, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं जो होएगा उसके बाद। बट देन यू आर लाइक, अगर 4 बच्चे हो गए या 3 बच्चे हो गए तो मल्टीपल प्रेगनेंसीज का रिस्क भी पेशेंट को साथ में बताना पड़ता है। लकीली दैट पेशेंट कंसीव्ड विद अ सिंगल प्रेगनेंसी, बट 3 से ऊपर मेरे को यूजुअली डर लग रहा होता है कि कहीं मल्टीपल प्रेगनेंसी ना आ जाए। अच्छा, अगर आपको ये दिख रहे हैं फॉलिकल, सपोज यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स विच आर मोर देन 18 मिलीमीटर, मोर देन सपोज 5-6 फॉलिकल्स दिख रहे हैं, तो क्या करोगे, क्या करना है? Can we give low dose HCG 2000? सॉरी डॉक्टर नताशा, मेरा ध्यान कहीं और था। Will कैंसिल करने पे मतलब क्या करना है? साइकिल को कुछ करना है, कुछ देने की जरूरत है कि छोड़ दो इसको ऐसे ही? मैम Ma'am, progesterone supplementation Low dose, can give. क्या दे सकते हैं? low dose Ma'am. HCG 1000 international. लो डोज नहीं, आपका जो OHSS का रिस्क होता है ना, मैम दैट इज विद Okay. अगर आप Ma'am, we can give Progesterone भी दे सकते 1 to 2 cycles OCPs for 1 to 2 cycles. नहीं, उस साइकिल में क्या करना है, वो तो बात की बात है कि हमने 1 to 2 साइकिल दे दी, उस साइकिल में क्या कुछ करने का जरूरत है उस टाइम पे? To prevent OHS. Yes, to prevent OHSS Yeah, we can give progesterone. you can give Right. progesterone. First of all, withhold your HCG. HCG हम नहीं देंगे क्योंकि HCG is the only culprit which leads to ovarian hyperstimulation. आपने बॉडी में से HCG निकाल दिया तो OHSS नहीं होगा पेशेंट को। एक HCG आपने दिया एक्सोजिनस, एक HCG कहाँ से आ सकता है? endogenous. एंडोजिनस, yes. तो you need to have abstinence. नहीं होना इस साइकिल में, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा सा डरा के भेजना पड़ता है उस कंडीशन में पेशेंट्स को। Okay. Good. एब्स्टिनेंस और HCG नहीं दो। बहुत सारे लोग सेट्रोलिक्स देते हैं, एंटा इज एंटागोनिस्ट विच वी यूज इन आवर IVF प्रोटोकॉल, सो सेट्रोलिक्स दिया जाता है, बट प्रैक्टिकली आई वुड से कि कुछ भी और देने की जरूरत नहीं है। अगर HCG बॉडी में नहीं आ रहा है, एंडोजिनस एक्सोजिनस, तो आपका पेशेंट OHSS में लैंड नहीं करेगा। प्रोजेस्ट्रॉन यू कैन गिव, कि प्रोजेस्ट्रॉन उस टाइम पे दे दिया, देन ऑल्सो यू विल प्रिवेंट OHSS। तो ऑल दीज मेजर्स कैन बी टेकन। जो डॉक्टर अंजलि बात कर रहे थे OCPs फॉर 2 or 3 साइकिल्स और 1 or 2 साइकिल्स, वी गिव इन दैट कंडीशन जब सेकंड थर्ड डे पे फिर से हमें सपोज रेमनेंट सिस्ट नजर आ रही है पेशेंट की। अब कई बार क्या होता है कि पेशेंट आपका 5-6 फॉलिकल्स वाला सेकंड थर्ड डे पे आया, तो देयर विल बी रेमनेंट सिस्ट प्रेजेंट, तो सिस्ट को रिजॉल्व करने के लिए वी गिव OCPs टू दोस पेशेंट्स इन द नेक्स्ट साइकिल इन केस दे आर देयर। प्रोजेस्टेरोन की डोज क्या रहेगी सर अगर OHSS है? हाँ, कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। डॉक्टर शालिनी वाज आस्किंग प्रोजेस्टेरोन का डोज क्या रहेगा? प्रोजेस्टेरोन रूटीन में आप लोग जो यूज करते हो दैट यू कैन गिव। कोई भी डोज डिफाइंड नहीं है, कोई भी डेज डिफाइंड नहीं है, दैट यू कैन गिव एज पर योर कन्वीनियंस। OHSS को क्लैरिफाई कर सके हम लोग? कर सके शायद, क्या नहीं कर Yes. सके? Yes, yes. फाइन। सो ट्रिगर टाइप हम क्या क्या यूज करते हैं? हमने ट्रिगर करना है पेशेंट को, अभी तुमने OHSS तक डिस्कस कर लिया, बट ट्रिगर क्या क्या दे सकते हो पेशेंट को, क्या क्या यूज करते हो? HCG. HCG और GnRH एनालॉग्स आर यूज्ड। बहुत बार प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है। डॉक्टर अंजलि आप क्या करते हो ट्रिगर में? HCG. HCG। Yes. ल्यूपराइड कोई देता है? हम इंजेक्शन HCG देते हैं 10,000. HCG only. HCG only, yes. So GnRH analogs are also being used. GnRH analogs हम प्रैक्टिकली IVF में यूज करते हैं इन दोज पेशेंट्स वेयर वी सस्पेक्ट कि कहीं हाइपर स्टिमुलेशन ना हो जाए। अब हाइपर स्टिमुलेशन कैसे प्रिवेंट करता है ये? क्योंकि HCG जो आप दे रहे हो, कि मैंने बोला HCG इज द ओनली कल्प्रिट व्हिच लीड्स टू ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम। GnRH एनालॉग, जो आप एनालॉग मतलब ल्यूपराइड या फिर डेकापेप्टाइड जो हम यूज कर रहे हैं, जब वो दे रहे हो आप, तो वो आपके ब्रेन के ऊपर एक्ट करके FSH और LH रिलीज कराता है। तो दोनों का सर्च करने के बाद देयर विल बी ओव्यूलेशन बिकॉज ऑफ द LH सर्च दैट हैपेंस विद GnRH एनालॉग। बट इसमें क्या होता है, ल्यूटियल फेज बहुत शॉर्ट हो जाता है,
ल्यूटियल फेज शॉर्ट होता है तो क्या होता है, आउटकम्स ऑफ आईवीएफ आर अफेक्टेड। तो जब आपका डेकापेप्टाइल दिया हुआ है उसमें आपको अपनी ल्यूटियल फेज सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है इन केस यू वांट टू ट्रांसफर द पेशेंट इन द सेम साइकिल, अदरवाइज वी गो फॉर फ्रीज ऑल स्ट्रेटेजी फॉर आवर पेशेंट्स व्हेन वी आर गिविंग डेकापेप्टाइल। आईयूआई में मैं पर्सनल बात करूं तो मैंने कभी नहीं दिया है डेकापेप्टाइल विद द सेम नोशन कि इसमें भी हमारा ल्यूटियल फेज डिफेक्टिव होगा, बट व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द लिटरेचर तो उसमें यही लिखा मिला कि बहुत बार your IUI results are not affected by either you give HCG or Leupride. That was actually surprise for me क्योंकि मैंने Leupride या Decapeptyl IUI में कभी नहीं दिया आज तक, सिर्फ इसलिए कि luteal phase will not be good. But एक अच्छी सी स्टडी थी जिसमें they have gone for a randomized control trial. उसमें कुछ पेशेंट्स को HCG दिया, कुछ पेशेंट्स को आपका Decapeptyl दिया, और luteal phase support क्या दिया उन लोगों ने, only 300, I think 300 के 400 milligrams of progesterone. उसमें भी there were no differences in pregnancy rates. अदरवाइज जब हम आईवीएफ में देते हैं तो आईवीएफ में हम लोग एस्ट्राडाइल सप्लीमेंट करते हैं इन आवर ल्यूटियल फेज सपोर्ट व्हेन वी आर गोइंग फॉर अ ट्रांसफर इन आवर पेशेंट्स विद डेकापेप्टाइल या एगोनिस्ट एज ट्रिगर. ल्यूपराइड स्टिल आई एम नॉट श्योर कितना यूज करना है, बट अभी तक यूज नहीं किया मैंने कभी इन आईयूआई पेशेंट्स, बट आई थिंक यू कैन यूज विद ऑल दीज थिंग्स इन लाइन. बुसरलिन वगैरह जो आते हैं वही है पहले, अब नहीं यूज होते हैं. ल्यूप्रोलिन तो यूज होता है पेशेंट्स का, बहुत बार प्रिस्क्रिप्शंस पे आता है, हम लोग डेकापेप्टाइल देते हैं. दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes, ma'am. Fine. So how much dose you give? 5,000 or 10,000? Is there any difference? We give 10,000. 10,000. Dr. Preeti, Dr. Anjali, Mostly, ma'am, mostly 10,000. If the patient is very lean and thin, then I usually give 5,000. 5,000. Yes. Hmm. So I also go for the same thing. In case मेरे को 3 एक फॉलिकल दिख रहे हैं और पेशेंट बहुत लीन थीन है तो मैं इसको कम डोज पे कर देती हूँ ट्रिगर. इन केस पेशेंट अच्छी खासी बिल्ड का है, मतलब एवरेज बिल्ड का है, और उसमें आई गो फॉर 10,000. देयर इज नो डिफरेंस वेदर यू गिव 5,000 और 10,000. बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं कि माय पेशेंट इज नॉट, मतलब फॉलिकल रप्चर नहीं हो रहा है तो उसको अगली बार क्या करना है. बहुत बार 5,000 से 10,000 पे शिफ्ट करते हैं हम लोग, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस वेदर यू गिव 5,000 वर्सेस 10,000. और जो नॉन रप्चर हम बोलते हैं, इन केस यू गो फॉर, हमने कभी डिस्कस किया इसके बारे में अनरप्चर्ड फॉलिकल? Yeah, I discussed it. I asked Dr. Preeti in the previous session. Fine. I think you will explain then to everybody. And we can go for dual trigger in that case. ड्यूअल ट्रिगर, बट मेरा व्यू पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट रहता है इस केस में. वो क्या रहता है मैं बता देती हूँ. वंस यू आर गिवन एचसीजी तो यूजुअली रिलीज हो जाता है फॉलिकल में से आपका उस साइड. तो यू आस्क योर पेशेंट वेदर आपको रप्चर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यू आस्क योर पेशेंट टू हैव टाइम्ड इंटरकोर्स. प्रैक्टिकली बिफोर आईयूआई मैं कभी चेक भी नहीं कर रही होती हूँ कि रप्चर हुआ है कि नहीं हुआ है, क्यों एचसीजी दे दिया तो रिलीज हो जाएगा पेशेंट का उस साइड. तो इट इज ओनली समटाइम्स दीज रिलीज्ड फॉलिकल्स, मतलब जिसमें से एग रिलीज हो चुका है, दे गेट रीफिल्ड, और जब वो रीफिल हो जाते हैं तो दे गेट कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ अ सिस्ट. थोड़ा सा एनलार्ज आपको नजर आना शुरू हो जाए, सिस्ट की फॉर्म में नजर आना शुरू हो जाएगा. बट ओवर अ टाइम यू विल सी शायद आपके कुछ पेशेंट्स जो आपने पहले अनरप्चर्ड सोचे थे वो भी कंसीव करके आ जाते हैं. हैज इट हैपेंड विद समबडी? No, ma'am. नो. बट प्रैक्टिकली यस, सर्टेन पेशेंट्स जहाँ पे हम बोलते हैं कि नहीं रप्चर ही नहीं हुआ, कभी कभार पेशेंट अगले महीने आपके पास अच्छा सा यूपीटी पॉजिटिव लेकर आ जाएगा. अल्ट्रासाउंड पे डेफिनेटली हो सकता है उसके कि फर्स्ट स्कैन पे आप देखो कि एक साइड पे सिस्ट बनी हुई है, बट प्रेगनेंसीज मे कम आउट टू बी पॉजिटिव इन सच पेशेंट्स. सो चाहे आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है फॉलिकल, मतलब सिस्ट दिख रहा है नहीं दिख रहा है, आस्क हर टू ट्राई नेचुरली. और आई थिंक कभी प्रैक्टिकली आपको आई शेयर अ वीडियो पोस्ट ओपीयू, जब हम पिकअप कर रहे होते हैं, पिकअप के बाद जब पेशेंट तीसरे या 5वें दिन पे हमारे पास आता है, यू लुक एट द ओवरीज, और कभी कभी ऐसी ओवरीज होती है वो कि आपने शायद पिकअप ही नहीं किया हुआ, इतनी फूल जाती है वो. दिस इज हाउ इट हैपेंस. आपने निकाल भी लिया तब भी वो रीफिलिंग होगी उसके अंदर, जिस कारण से आपको वो सिस्टिक स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं. तो नेचुरल में भी आई टेक इट द सेम थिंग कि शायद इट इज गेटिंग रीफिल्ड एंड इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सिस्ट.
So pregnancy may happen in the same cycle. अच्छा, HCG दिया है तो उसके बाद टाइम इंटरवल कितना रखोगे IUI का? 34 to 40 hours. 36, 24 to 36 hours, 24 to 36 hours. और सब कुछ ठीक है, जो मर्जी बोल दो. बिकॉज प्रैक्टिकली 24 घंटे और 36 घंटे पे जो भी एनालिसिस किए उसमें सब में प्रेगनेंसी आउटकम्स या प्रेगनेंसी रेट्स वर नॉट डिफरेंट. तो आप चाहे 24 घंटे पे IUI कर दो, 36 घंटे पे कर दो, योर प्रेगनेंसी रेट्स आर नॉट गोइंग टू मैटर. एंड इवन कुछ लोग लेट IUI करते हैं 48 आवर्स पे, उसमें भी बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है प्रेगनेंसी सक्सेस रेट पे. प्रैक्टिकली 36 घंटे पे आप सोच रहे हो कि आपका ओव्यूलेशन होगा, उससे 4 घंटे पहले या 12 घंटे बाद में किसी भी टाइम पे आप अगर IUI कर रहे हो तो आपका सक्सेस रेट इज नॉट गोइंग टू मैटर. एंड देयर आर सर्टेन न्यू स्टडीज वेयर पीपल हैव ट्राइड कि आपने जिस दिन HCG दिया सेम डे पेशेंट को IUI करके भेज दिया. इन दोज कंपैरिजंस आल्सो सक्सेस रेट्स आर सेम. प्रैक्टिकली व्हाट वी फॉलो इज लगभग 40-42 आवर्स का गैप रहता है हमारे IUI में. शाम का हमारा ट्रिगर जाता है, नेक्स्ट डे मतलब एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे भी प्लान फॉर IUI. लगभग 40 आवर्स के गैप पे जाता है. अगर फॉलिकल मेरे को बहुत बड़ा नजर आ रहा हो कि हाँ नहीं तो ये शायद रप्चर हो जाएगा, इन दैट केस आई गो फॉर 24 आवर्स. दिस इज वी हैव डिस्कस्ड. नाउ अब आपने ट्रिगर कर दिया पेशेंट को और IUI के लिए आपने तैयारी कर ली. अब तैयारी कैसे करोगे, क्या करोगे, क्या चाहिए आपको IUI से पहले या IUI के दिन? Sample. सैंपल चाहिए ऑब्वियसली. सैंपल और आपका लैब पर्सन चाहिए प्रिपेयर करने के लिए. लैब एंड टेक्निक विच ही इज यूजिंग. तो आपके पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं, स्विम अप है, डेंसिटी ग्रेडियंट है. विल बी डिस्कसिंग इट इन आवर नेक्स्ट सेशन. नेक्स्ट 21st को जो हम करेंगे ना उसमें विल ट्राई आउट कि हम लेक्चर के साथ, मतलब लेक्चर भी रखूंगी साथ में और वर्कशॉप में हमारी थोड़ी सी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी होएगी. तो आई प्लान आउट एवरीथिंग, मैं सारा कुछ शेयर करूंगी आप लोगों को. तो इसमें यू कैन यूज आइदर स्विम अप और डेंसिटी ग्रेडियंट. जो पेशेंट का सैंपल है उसके बेसिस पे योर एंड्रोलॉजिस्ट विल डिसाइड कि क्या वो यूज करना चाह रहा है. एंड प्रैक्टिकली किसी भी टेक्निक में सक्सेस रेट्स के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है यूज करने पे. नाउ व्हाट इज द टाइम इंटरवल? आपका सैंपल पेशेंट ने दे दिया, उसके बाद कितने टाइम के बाद IUI करना है या कितने टाइम के बाद प्रिपेयर करना है? डू यू थिंक दिस टाइम इज गोइंग टू मैटर? 30 minutes पढ़ते होते थे उसको. It should be done within 30 minutes. It should be done within 30 minutes. Post collection के post preparation. Post preparation. Post preparation. So there are basically दो timings हम इसमें लेकर चलते हैं. एक is one patient has given the sample और उसके बाद आपने एनालिसिस या कब से उसका प्रिपरेशन शुरू किया. सेकेंड इज प्रिपेयर होने के बाद कितने टाइम के बाद आपने कर दिया. तो दिस टोटल टाइम ड्यूरेशन शुड बी 90 मिनट्स जो बोलते हैं. अब इसमें एक और चीज सामने आई है आज पढ़ते पढ़ते, मेरे को वो भी शेयर करूंगी आपको आर्टिकल. उसमें दे हैव सीन कि दे हैव यूज्ड एक्चुअली 2 टाइम इंटरवल्स. वन इज जिसमें बहुत जल्दी जल्दी कर दिया IUI, लेस देन 90 मिनट्स पे IUI कर दिया. The second group of patients had undergone IUI at 180 minutes, मतलब डबल टाइम लेके किया. प्रिपेयर करने के बाद उसको छोड़ दिया सैंपल को, उसके बाद दे हैव डन IUI at around 180 minutes. उसमें दे हैव सीन 180 मिनट्स पे जब उन्हें IUI किया तो उसके सक्सेस रेट्स बेटर आ गए उनके. प्रैक्टिकली शायद सारी लैब्स में एप्लीकेबल नहीं है, फिर उन्होंने कुछ मीडिया का दिया हुआ था कि वी यूज दिस मीडिया. सो इट कुड बी कि टाइम इंटरवल बढ़ाने से शायद कैपेसिटेशन बेटर होगी स्पर्म की, जिस कारण से फर्टिलाइजेशन बेटर हो गया. बट हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं अभी तक कि एक बार सैंपल बता दिया लैब वाले ने कि तैयार कर दिया तो उसके बाद वी प्लान IUI एज सुन एज पॉसिबल. प्रैक्टिकली 90 मिनट्स भी फॉलो, बट शायद ये पेपर पढ़ने के बाद थोड़ा सा हम लूज हो सकते हैं. ये सक्सेस रेट में नॉट बी मैटरिंग. मैं गलत गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ सबको. बट दीज आर द थिंग्स विच आर गोइंग ऑन एंड दीज आर द थिंग्स. आई थिंक एक आर्टिकल ऐसा भी था जिसमें एक दिन के बाद IUI किया था शायद. दिस इज एट द बैक ऑफ माई माइंड कि मैंने कभी पढ़ा था कि एक दिन के बाद IUI किया पोस्ट प्रिपरेशन. उसमें भी बहुत ज्यादा उनको फर्क नहीं पता चला. What should be the time interval between collection and preparation?
इट शुड बी एज सुन एज पॉसिबल। आपका सैंपल लिक्विफाई हो जाएगा तो उसके बाद आप प्रिपेयर करना शुरू कर दो। यू हैव टू जस्ट वेट फॉर द लिक्विफैक्शन। Okay, okay. अभी प्रैक्टिकली हम 90 मिनट्स ही सोचेंगे जब तक कि हमारे पास बहुत सारी एविडेंस नहीं आ जाती कि हम छोड़ सकते हैं सैंपल को। एंड सेकेंडली वो मीडिया जो मैं बात कर रही हूँ, मेरे को खुद नहीं पता कि वो कौन सा कैसे लिखा है उन्होंने, बट वन वैलिड पॉइंट दे हैड गिवन कि शायद वो मीडिया में रखने से कैपेसिटेशन बेटर हुई, जिस कारण से फर्टिलाइजेशन एबिलिटी बेटर हो गई हमारे स्पर्म की। बट वन मोर थिंग दे हैड रिटन कि उन्होंने आईयूआई किया होता 48 आवर्स पे। अनदर रीजन दे हैड गिवन फॉर हायर सक्सेस रेट इज कि जब स्पर्म ऑलरेडी कैपेसिटेटेड है और ओव्यूलेशन ऑलरेडी हो चुका है 48 आवर्स पे, तो वो रेडी है फर्टिलाइजेशन के लिए। दैट इज व्हाई यू आर हैविंग अ बेटर सक्सेस रेट। और आपका कैपेसिटेटेड स्पर्म नहीं है, उसको टाइम लगेगा इन द यूट्राइन कैविटी, या ज्यादा टाइम लगेगा कैपेसिटेट होने में। 48 आवर्स पे अगर आप वो वाला सैंपल यूज कर रहे हो तो शायद आपके सक्सेस रेट्स डाउन है। तो देयर कुड बी टू रीजंस, टाइमिंग कि हमने किस टाइम पे किया, सेकंड इज कैपेसिटेशन। ये मैं क्लियर कर पाई कि नहीं कर पाई? Yes, ma'am. Yes. मतलब वन इज यू आर पुटिंग इनटू द स्पर्मेटोजोआ जो ऑलरेडी कैपेसिटेटेड है, उधर से एग ऑलरेडी फर्टिलाइजेबल है, तो दोनों आर मैचिंग, तो फर्टिलाइजेशन फटाफट से हो जाएगा। वन इज आपका एग तो तैयार है फर्टिलाइजेशन के लिए, बट आपका स्पर्म अभी पीछे घूम रहा है, वो अपनी स्टेज पे नहीं पहुंचा, वो भी रेडी नहीं है। तो in that case your success rate will be lower. So probably this could be another reason, because egg and sperm have to be basically ready for fertilization for the success to be there. Ma'am, Technique is simple. Sorry. मैम 2 Dr. कंसेक्यूटिव डेज पे आईयूआई करते हैं क्या, कर सकते हैं क्या ऐसे? Double double IUI is done, but practically there is no importance of double IUI. Only in patients who are having mild male factor infertility, उसपे देखा गया है कि you can have success, better outcome with double IUI. बट प्रैक्टिकली सिंगल आईयूआई, सिंगल टाइम्ड आईयूआई अगर आप कर रहे हो, उसमें आपके सक्सेस रेट्स आर गोइंग टू बी द सेम। वी आर यूजिंग सिंगल आईयूआई। डबल आईयूआई आप लोग करते हो? नहीं मैम। No. तो व्हेन द पेशेंट कम्स टू यू ऑन आईयूआई डे, आपने सैंपल ले लिया, प्रोसेस कर लिया और टाइम के हिसाब से आपने आईयूआई प्लान कर लिया। अब आईयूआई जब आप टेक्निक, मतलब आईयूआई व्हेन यू आर डूइंग, तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है? इज देयर समथिंग स्पेशल दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ? टेम्परेचर तो आपका स्पर्म का तो इंक्यूबेटर में रहेगा, प्लस हीटिंग ब्लॉक में आते हैं जब भी आपके सैंपल्स आते हैं हमारे पास। आई वाज आस्किंग कि कहाँ से सैंपल प्रिपेयर होके आता है, तो सबने जवाब दिया बाहर से सैंपल प्रिपेयर होके आता है। जब आप बाहर से ट्रांसपोर्ट कराते हो सैंपल, तो कैसे आता है ट्रांसपोर्टेशन में? Thermocol box में. थर्मोकोल बॉक्स में, फाइन। बिकॉज टेम्परेचर हैज टू बी मेंटेन्ड। मेरे पास भी अगर ऊपर एंड्रोलॉजी लैब से नीचे मेरी बेसमेंट में सैंपल आता है, तो दे कैरी इट इन अ हीटिंग ब्लॉक। बेसिकली हीटेड ब्लॉक्स होते हैं जिनका टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं हम लोग। तो दिस इज ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो, मतलब अगर विद इन हॉस्पिटल भी है तब भी हीटिंग ब्लॉक्स में होता है। आईयूआई के टाइम पे और क्या ध्यान रखोगे? टेक्निक सबको पता है, हम सब कर रहे हैं, बट इज देयर समथिंग स्पेशल दैट वी नीड टू एड्रेस? अच्छा, कैसे करते हो आईयूआई? टेक्निक, ओनली टेक्निक। Place the thought me position. We'll put Cusco Then speculum. Cusco speculum and then give the semen sample around 0.5 to 0.8 ml slowly over 15 to 20 seconds. Cervical mucus should be cleaned. सर्वाइकल म्यूकस कितने क्लीन करोगे? ओनली थिंग आई वांटेड टू नो इज कि बीटाडीन या कुछ और यूज नहीं करना, सेवलॉन बीटाडीन बिफोर यू प्लान योर पेशेंट फॉर आईयूआई। कुछ भी यूज करोगे तो आपका स्पर्म बेचारा जो घूमता नॉर्मल फिरता सलाइन या डिस्टिल्ड वाटर से क्लीन करना है। We do it with cotton only. कॉटन ओनली। यस, आई आल्सो डोंट यूज एनीथिंग। स्वैब छोटे छोटे लेकर कॉटन से हम लोग क्लीन करते हैं म्यूकस को। तो यू पुट योर पोजीशन लिथोटमी, यू पुट योर पेशेंट इन लिथोटमी पोजीशन, कस्कोस के साथ प्रेफरेबल, बिकॉज उसमें आप थोड़ी सी अपनी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को कम कर रखते हो। और कुछ भी चीज से आपको एक्स्ट्रा चीज से क्लीन नहीं करना है। विद द कॉटन स्वैब यू कैन क्लीन आउट द म्यूकस दैट इज देयर। और उसके बाद यू पुट इन द कैनुला और आप इंजेक्ट कर रहे हो बहुत स्लोली। वॉल्यूम जो आपके पास आता है 0.3 to 0.5 ml का आता है, कंसेंट्रेटेड सीमेन सैंपल, एंड यू पुट इट इनसाइड एंड यू रिलीज इट वेरी स्लोली। एकदम झटके से मारोगे तो
कॉन्ट्रैक्शंस हो जाएंगी, बस प्लस उसे इट तो- ट्यूब्स के मतलब बीच में से जाके शायद बाहर आउटफ्लो हो जाएगा उसका, तो यू रिलीज इट वेरी स्लोली सो एज टू डिपॉजिट इनसाइड द यूट्रस। कैनुला फिल करने से पहले तो पता है कि इतनी एयर भी होनी चाहिए ताकि वो पूरा नहीं। ऐसा कुछ नहीं। आईयूआई में नहीं। आईयूआई में नहीं। मैम पूछ रहे कैनुला में फिल करने से पहले एयर का कुछ गैप रखना होता है। एयर गैप इज नॉट इन आईयूआई। ये हम एयर गैप जब रखते हैं तो इट इज ओनली फॉर द एम्ब्रियो ट्रांसफर। एयर गैप इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर आईयूआई सैंपल्स। How much time we need to take for IUI injection? मैम प्रैक्टिकली 3 to 5 minutes अगर आप इतना स्लोली कर रहे हो तो। Okay. Thank you. मैं शायद 2 या 3 मिनट लगाती हूँ, क्योंकि इतना स्लो कई बार इंजेक्ट होता नहीं है। पेशेंट पता नहीं पुश करता है ना ऐसे बाहर की तरफ। यू जस्ट इंजेक्टेड स्लोली की बैक फ्लो ना आए आपका, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आप स्टिमुलेट ना करो। और बहुत ऊपर तक नहीं जाना चाहिए आपका कैनुला, बिल्कुल फंडस को टच करेगा तो भी और आउटकम्स विल नॉट बी गुड। तो आप इंटरनल ऑस एक बार क्रॉस कर रही हो, उसके बाद यू स्टार्ट द इंजेक्शन प्रोसेस। जब इंजेक्ट करते हैं तो कुछ पार्ट उसमें रह जाता है ना कैनुला के, जो आगे का पार्ट है बिल्कुल जो थिन। नहीं मैम, व्हेन यू आर टेकिंग इट आउट ना, जब आप कर रहे हो तो इनिशियल पार्ट आपका एयर ही आता है। आप ऐसे कर रहे हो हाँ, तो एयर हाँ। कैनुला के अंदर है, अच्छा आप पीछे खींच रहे हो तो पहले एयर आएगी, फिर उसके बाद वो आएगा। ठीक तो है। एयर गैप ऑटोमेटिक है जो आएगा। Automatic। जब आप इंजेक्ट करोगे तो पहले सीमेंस जाएगा और एयर गैप उसी का वापस चला और जो जाएगा। डोनर जो सीमेन सैंपल उसमें तो एयर नहीं आती। वो तो मैम जब आप उठाओगे हाँ, तो हाँ। एयर ऑटोमेटिकली आती है, बट दैट एयर इज नॉट इंजेक्टेड इनसाइड। वो एयर आपकी कैनुला में ही रह जाएगी। कैनुला में ही रहती वो है कैनुला ना, की एयर है, कैनुला ताकि में वो रह आगे का जाएगी। पार्ट भी चला जाए जो सीमेन। एनी मोर क्वेश्चंस इन दिस? मैम वाज आस्किंग कि एयर क्या पूछा था आपने? एयर आती है जो। हाँ, जो पीछे हम लास्ट में सैंपल रह जाता है ना, जो थिंड आउट होता है उसका पार्ट उसमें लास्ट में रह नहीं जाता है। when you are taking, suppose this is your IUI cannula, suppose this is your IUI cannula and you are taking the sample from this cannula, तो आप जब ले रहे हो उसको सिरिंज में तो सबसे पहले कैनुला के अंदर क्या है? इट इज एयर। सो व्हेन यू आर टेकिंग, तो आपका एयर वही वाला अंदर आ रहा है, उसके बाद आपका सैंपल आ रहा है, तो आपको एयर दिखाई देगी अंदर सिरिंज के अंदर। बट व्हेन यू आर इंजेक्टिंग तो क्या हो रहा है, जब आप इंजेक्ट कर रहे हो तो वो एयर पीछे पहला रहेगी और सैंपल है। आगे जाएगा, और जितना आपका एयर आपके कैनुला में थी वो वापस वो कैनुला में चली जाएगी, सैंपल आपका अंदर चला जाएगा। इज इट क्लियर? Yes. So after IUI, do you think any rest is required? No. No. करवानी है तो क्यों करवानी है? To prevent the expel. To prevent the expel, और Spermatozoa. एक्चुअल में रेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट स्टिल हम करवाते हैं रेस्ट। वन इज मतलब थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है स्टडीज, कुछ में है कि साथ के साथ आपने मोबिलाइज कर दिया पेशेंट को या 10 मिनट 15 मिनट का रेस्ट दिया, उसमें देयर इज नो डिफरेंस। और कुछ लोग बोलते हैं कि 10 मिनट का रेस्ट दो तो शायद उससे थोड़ा सा आपका आउटकम बेटर हो जाए। प्रैक्टिकली आई ऑल्सो कीप माई पेशेंट फॉर 10 to 15 minutes। वन पेशेंट की तसल्ली कि वो लेटा हुआ है, आप एकदम से उठाओगे तो उसको भी थोड़ा सा लगता है कि हाँ करके फटाफट से उठा दिया मेरे को। और बाकी और कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस शायद नहीं है, इट्स ऑल अप टू यू। बट आई थिंक इट इज गुड इन केस पेशेंट रेस्ट फॉर 5-10 minutes या 10-15 minutes, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसमें ज्यादा, पेशेंट को तसल्ली हो जाती है और वहम नहीं होता बेसिकली। नाउ ल्यूटियल फेस सपोर्ट, इज इट रिक्वायर्ड इन IUI cycles? Luteal phase support? Yes. We usually give. Usually give, but is it important to give? Is it essential to give? Not important, but essential to give. If the cycle is stimulated by gonadotropins or Yes. clomicin. In case In cycle is letrozole is not stimulated- required. yes, in case your cycle is stimulated with gonadotropins, in that case, luteal phase support is found to be beneficial. In case your cycle is a plain clomiphene or letrozole cycle, उसमें आपका luteal phase support के बिना काम आराम से चल जाता है। But practically also we are giving luteal phase support, क्योंकि जब पेशेंट IUI का पेमेंट कर रहा है तो उसमें थोड़ा सा उसको सपोर्ट करने में कोई हार्म नहीं है। इट इज नॉट गोइंग टू हार्म, ऑल्दो इट मे नॉट बेनिफिट।
और डोज क्या रखते हो ल्यूटियल फेस सपोर्ट की? 400। 400। और डॉक्टर अंजलि आपने बोला था? किसने बोला 400? मैंने। डॉक्टर नताशा ने। और कौन कौन कितना कितना देता है? देयर इज नथिंग रॉन्ग, नथिंग इज रॉन्ग इन दिस। किसी भी डोज पे आप दे सकते हो, कि किसी भी डोज में ऐसा नहीं है कि कुछ कम ज्यादा हो जाएगा। 300 और 400। 300 और 400। देयर वाज अ स्टडी जहां पे 300 और 400 कंपेयर किया था। सॉरी, आई थिंक दैट कंपेयर 300 टू 600, 400 नहीं, 300 एंड बीडी डोज, मतलब ओडी डोज ऑफ 300, बीडी डोज टोटल 600। तो उसमें देयर वाज नो डिफरेंस इन प्रेगनेंसी सक्सेस रेट, सो 300 इज फाइन इनफ, कोई दिक्कत नहीं है उसको देने में। एक्चुअल में तो रिक्वायर्ड नहीं है, दे रहे हो तो कम से कम डोज पे दे दो बस, और कुछ नहीं। बाकी देयर इज नथिंग रॉन्ग, नथिंग, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो एब्सोल्युटली सही है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो एब्सोल्युटली रॉन्ग है इन मेडिसिन। अब कितने आईयूआई करोगे उसके बाद आप बोल दोगे पेशेंट को भाई बस कर, अब कुछ और करा ले। 3 to 6। 3 to 6। और अभी मैंने ही बोला है ना, डॉक्टर नताशा ने बोला है ना। हाउ मेनी? सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, मैं वही बोल रही हूँ, कुछ भी सही 3 नहीं है, कुछ भी cycles. गलत नहीं है, वॉट एवर यू आर डूइंग इज राइट। आप उसको ढूंढना शुरू करोगे तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा सपोर्ट करने के लिए। 3 to 4 IUIs are fine enough. Practically, your patient will conceive in 3 to 4 cycles of IUI. उसके बाद अगर वो कंसीव नहीं कर रहा है तो सक्सेस रेट्स तो सेम ही रहने IUI के पर साइकिल। उसके बाद बहुत ज्यादा कंसेप्शन रेट्स अच्छे नहीं होते हैं, बट पेशेंट का मनी वेस्टेज शायद ज्यादा होना शुरू हो जाता है एंड मेंटल टॉर्चर भी ज्यादा होना शुरू हो जाता है। तो प्रैक्टिकली 3 to 4 IUIs, उसके बाद बहुत सारे आप IUI करोगे तो शायद वी आर नॉट गोइंग टू बेनिफिट आवर पेशेंट। तो वी ऑल्सो फॉलो सेकंड IUI, थर्ड IUI के बाद हम लोग बोलना शुरू हो जाते हैं कि नाउ इट्स बेटर वी शुड मूव फॉरवर्ड टू अनदर ट्रीटमेंट प्लान। बाकी इट इज नॉट 3 IUI और 6 IUI, इट इज ऑल्सो इंडिविजुअलाइज डिसीजन। सपोज मेरे पास एक पेशेंट आ रहा है, 8 साल की मैरिड लाइफ एंड एवरीथिंग इज नॉर्मल, पेशेंट वांट्स IUI, तो कितने IUI प्लान करोगे आप उसके लिए? पेशेंट इज ऑलरेडी 35 है, कितने IUI करोगे? 2। 2 या 1 वैल्यूज, बट ऑन एन एवरेज 3 से 4 IUI में पेशेंट कंसीव कर जाए अच्छा है, नहीं कर रहा है तो बहुत अच्छा है कि नेक्स्ट उस पे साइकिल पे IVF के ऊपर आप ले जाइए उसको। एंड व्हेन द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम तो उसको ये भी समझाना जरूरी हो जाता है कि IUI के सक्सेस रेट्स आर हार्डली 12 to 15%। आप कितने कराना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, बट प्रैक्टिकली वी विल फॉलो आइदर 1 or 2 IUIs in case you wish for. Okay, I think there are certain controversies. एक तो सिंगल और डबल तो हमने डिस्कस कर ही लिया। डबल not much useful except in certain cases where you have mild male factor infertility. Type of catheter बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। Type of catheter is not going to matter much. तो कोई भी आप यूज कर सकते हो कैथेटर of your choice. एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट इन IUI साइकिल्स यूज करने हैं। कई बार प्रीमेच्योर रप्चर को प्रिवेंट करने के लिए आप एगोनिस्ट दे रहे हो, एंटागोनिस्ट दे रहे हो, तो एनीबडी यूजिंग? नो। यू कैन यूज, जो मैम ने बोला डॉक्टर शालिनी, यू कैन यूज, उसमें मना नहीं करूंगी मैं, बट एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट यूज करने से आपका साइकिल कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है, प्रेगनेंसी सक्सेस रेट्स पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। तो प्रैक्टिकली पर्सनली आई एम नॉट यूजिंग एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट इन आवर IUI साइकिल्स। I think somebody entered at the end. Dr. Kanika entered at the end. Hi, Dr. यस। Kanika. हेलो डॉक्टर साहब, लेट हो ऐसे गई, मैं कहीं पे जा रही थी तो फिर मैं इस कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम अगली क्लास में इकट्ठे इकट्ठे करेंगे फिर से। अभी आपके लिए बाकी तो मेरा खत्म हो गया, बट लास्ट में ये मैं देख रही थी, मैंने कहा मैंने आज लिखे तो हैं बट शायद पता नहीं पढ़ाऊंगी कि नहीं, बट आपके लिए एक मैसेज बता देती हूँ बस, और ज्यादा नहीं है। थैंक यू बता दीजिए। तो डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स रिजल्ट स्टिल लोअर विद IUI। कितने रिजल्ट रहते हैं? 12 से 15% या मैक्सिमम 18-20%। हाँ कुछ जी। पेशेंट्स अच्छे होते हैं कंसीव करने के लिए, जैसे कि Less than बाकी लोग 30. बताओ।
Have less than 30 more chances of conception. Yes, less than 30. And more than 38 to 40 more chances कि she will not conceive. Yes. There's less chances. और इटियोलॉजी के बेसिस पे हमने कौन से डिस्कस किए थे, कौन से अच्छे पेशेंट से कंसीव करने के लिए? Anovulatory, Infertility, unexplained, mild male factor, male factor, cervical factor, cervical factor. donor और किसमें आपके पुअर आउटकम्स रहेंगे आईयूआई करोगे तो? tubal factor, Clear male factor, tubal factor, endometriosis. सिवियर डिग्री ऑफ ग्रेड 3 ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस। सीमेन वैल्यूज किसी पे रिफ्यूज करना है? No. पोस्ट वॉश काउंट हम देखते हैं। पोस्ट वॉश काउंट में अगर हम देख रहे हैं तो स्पर्म का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिसपे कि प्रेगनेंसी नहीं होती। इट इज ओनली कि कितने % चांसेस रहेंगे। पोस्ट वॉश काउंट मोर देन 10 है तो अच्छे चांसेस हैं, लेस देन 5 है तो उसमें थोड़े से कम चांसेस है, बट इवन 0.25 पे भी रिपोर्टेड है प्रेगनेंसीज। तो अपने पेशेंट को काउंसिल करो, और आईयूआई कराना चाहते हैं तो उसे करो। स्टिमुलेटेड साइकिल में देर आर बेटर आउटकम्स, नेचुरल साइकिल आईयूआई में देर आर लोअर सक्सेस रेट। स्टिमुलेटेड साइकिल में प्रोबेबली बिकॉज कई बार मल्टीफॉलिकुलर ग्रोथ होती है, जब आपका मल्टीफॉलिकुलर ग्रोथ होता है उसमें आपके आईयूआई के चांसेस वैसे ही बढ़ जाते हैं। 8-9% विद सिंगल फॉलिकल मोनोफॉलिकुलर ग्रोथ, एंड मल्टीफॉलिकुलर ग्रोथ में लगभग उससे डबल हो जाता है आपका चांस ऑफ प्रेगनेंसी। HCG theoretically better as compared to GnRH analog because analogs हमारे luteal phase support को कम कर देते हैं या ल्यूटियल फेज में ल्यूटियोलाइसिस करते हैं। दैट इज व्हाई ल्यूटियल फेज सपोर्ट बी बेटर इन केस यू आर यूजिंग GnRH एनालॉग फॉर IVF साइकिल्स। बट IUI साइकिल्स में स्टडीज हैं कि GnRH एनालॉग के साथ भी सक्सेस रेट हमारे बहुत ज्यादा अफेक्टेड नहीं है, बट स्टिल आई विल adhere to my practice कि शायद मैं GnRH एनालॉग IUI के टाइम पे अभी भी नहीं दूंगी। सिंगल टाइम IUI सफिशिएंट, डबल IUI की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, and it can be performed anytime between 24 and 40 hours after HCG injection without compromising pregnancy rates. सीमेन प्रेपरेशन टेक्निक्स के ऊपर कोई भी ज्यादा स्पेसिफिक टेक्निक नहीं है जिसमें आपके रिजल्ट्स आउटकम्स बेटर हो पाए। ल्यूटियल फेज सपोर्ट सिर्फ उन पेशेंट्स में जिनमें आपने गोनाडोट्रोपिन दिए हैं, ओरल में रिक्वायर्ड नहीं है, बट यू कैन गिव डोज डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू प्रेफर। 300 तक दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज्यादा भी देने की जरूरत नहीं है। एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। कैथेटर कौन सा यूज कर रहे हो उसका भी कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। बेड रेस्ट कंट्रोवर्शियल, कुछ बोलते हैं अच्छा है 10 मिनट का रेस्ट, कुछ बोलते हैं कुछ जरूरत नहीं है। इट्स ऑल अप टू यू, व्हाट एवर यू वांट। और एनीथिंग इन दिस? अच्छा, अभी के ART लॉज के हिसाब से भी कुछ कुछ IUI के रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो क्या क्या हैं? Your center should be registered for IUI. सेंटर शुड बी रजिस्टर्ड फॉर IUI फर्स्ट ऑफ ऑल। गायनेकोलॉजिस्ट होना चाहिए आपके पास, एक ट्रेंड बंदा होना चाहिए IUI के लिए। आपको एक लैब दिखानी पड़ेगी IUI की अलग से। डोनर की आइडेंटिटी डिक्लेयर नहीं की जाएगी। डोनर की आइडेंटिटी ना बहुत ज्यादा अभी इस टाइम पे आई वुड से देयर आर सर्टेन कंट्रोवर्शियल थिंग्स। अभी उन्होंने डोनर जहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पहले यूनानिमस डोनर होता था। यूनानिमस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? एनोनिमस, सॉरी मैंने गलत बोला, एनोनिमस भूल गई थी मैं वर्ड। देयर यूज्ड टू बी अ वर्ड एनोनिमस डोनर, अभी एनोनिमस ही हटा दिया उन्होंने। तो डोनर उस साइड की अगर हम बात करें तो उसमें तो हम लोग ले रहे हैं आजकल घर से डोनर स्पर्म। अभी भी एनोनिमस वर्ड हटने के बाद भी वी आर नॉट टेकिंग फ्रॉम होम, बिकॉज जो उन्होंने एक चीज डाली है बीच में, वो क्या है कि जो भी सैंपल आएगा आपके पास डोनर के लिए वो ART बैंक से आएगा। तो वी हैव टू टेक एवरीथिंग थ्रू द ART बैंक, चाहे वो होम डोनर हो चाहे कोई और हो, ART बैंक के थ्रू होकर आएगा। सीमेन सैंपल्स प्रैक्टिकली मैं मना करती हूँ घर से लेने के लिए। क्यों? क्योंकि देयर कुड बी इश्यूज, मतलब फीमेल्स डोनेट करके शायद साइड पे हो जाएंगी, मेल्स डोनेट करके कहीं डोमिनेट ना करें, इसलिए आई एम अफ्रेड की फैमिली में प्रॉब्लम ना हो आगे। तो सीमेन सैंपल्स आई स्टिल रिफ्यूज। और में डोनर सीमन ले सकते हैं या बैंड है ये IUI के लिए? मैम आप कोई भी डोनर डायरेक्ट नहीं ले सकते हो। नहीं, लीगली अगर लीगली ले सकते हैं अगर IUI के लिए। मुझे किसी ने बोला कि IUI में हम नहीं करेंगे लीगल, इससे हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, हम लोग भी नहीं करते मैम, घर से नहीं ले रहे हम लोग डोनर्स। हाँ जी। वही मैं आपको बता रही थी कि देयर आर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कि आपने
सपोज फीमेल डोनर ले ली, तो फीमेल्स आर नॉट लाइक दैट कि हाँ कल को जाके किसी के घर में वो करेंगी, हाँ बच्चा दे दो मेरे को, जी बट मेल्स कुड बी लाइक दैट। अभी जो एआरटी लॉ है उसमें शुरू में जो एआरटी रूल्स थे, रूल्स नहीं, इट वाज रेगुलेशंस बेसिकली, जो हाँ फ्रेम जी हुई थी उसमें दे हैड यूज्ड अ वर्ड एनोनिमस, एनोनिमस डोनर। एनोनिमस मतलब नाम पता किसी को पता ना हो। तो उस टाइम पे तो बहुत स्ट्रिक्टली ये था कि आप नहीं ले सकते हो घर से। अभी जब से ये वर्ड हटा दिया है एनोनिमस, और जब से के आएगा, आप डायरेक्ट सैंपल किसी का नहीं ले पाओगे। बट अभी भी जो आपने बोला कि मेरे को किसी ने रिफ्यूज किया, तो हम हाँ लोग भी जी। रिफ्यूज कर रहे हैं कि होम डोनर वी विल नॉट टेक फॉर सीमेन सैंपल्स। अदरवाइज यहाँ से तो ले सकते हैं, एआरटी सेंटर से है अलाउड? एआरटी बैंक से बैंक से, मैम, हाँ हाँ, वहां से बैंक से अलाउड लेंगे, है ना उसके लिए, बैंक से आईयूआई अलाउड है, के लिए? ओके। बैंक से ही allowed है, और कहीं से भी अलाउड नहीं है मैम, सिर्फ बैंक से ले सकते हैं। मुझे ना बैंक से भी मना कर दिया कि बैंक से भी नहीं ले सकते हैं, आईयूआई के लिए, आईवीएफ के लिए ले सकते हैं, इसलिए मुझे क्लियर करना था आपसे। नहीं मैम, बैंक से तो लेते हैं हम डोनर सैंपल्स। वो आइदर यू यूज इट फॉर आईयूआई और यू यूज हाँ इट फॉर जी आईवीएफ, वो आपको रिकॉर्ड बैंक को देना पड़ता है। प्लस बैंक उसी को देगा जो कि रजिस्टर्ड है, या हाँ जिसकी जी, रजिस्ट्रेशन अभी पेंडिंग है, एप्लीकेशन गई हुई है। ठीक है ठीक है। बैंक को भी अपना पूरा डाटा मेंटेन करना पड़ता है, कौन सा डोनर कहाँ गया हुआ है, क्योंकि अभी मतलब इनिशियली तो कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं था डोनेशन पे, बट अभी हाँ जी रिस्ट्रिक्शन क्या है कि सिंगल टाइम डोनेशन है। अ मेल कैन डोनेट अ सिंगल टाइम, अ फीमेल कैन डोनेट अ सिंगल टाइम। तो सिंगल टाइम डोनेशन के बाद वो पूरा डाटा मेंटेनेंस चाहिए उन लोगों को कि कौन सा सैंपल यूज हो चुका है और कौन से सैंपल से प्रेगनेंसीज आ चुकी हैं। हाँ जी। एनी मोर क्वेरीज? आप ये वाला रिकॉर्डेड सेशन भेज देंगे? मैम मैं ग्रुप में शेयर करूंगी रिकॉर्डिंग, शुरू के शायद 4-5 मिनट की रिकॉर्डिंग नहीं है, उसके बाद की रिकॉर्डिंग है, बट उस 4-5 मिनट में हमने कुछ किया नहीं था ज्यादा। ठीक है ठीक है। और कोई क्वेरीज? जब वर्कशॉप के लिए कौन कौन आएगा, मेरे को तैयारी उस हिसाब से करनी पड़ेगी। ज्यादा लोग बोलेंगे तो मैं स्लॉट्स में डिवाइड करूंगी फिर। I will come. ठीक है, डॉक्टर Date, अंजलि ना? Dr. Anjali. Ma'am, Dr. Anjali also. I also will come. डॉक्टर प्रीति और डॉक्टर अंजलि ने बोला ना अभी मेरे को। Yes, yes. ठीक है ठीक है। Date, ma'am? तो चाहिए डेट प्रोबेबली 21st, जो हमने 2 वीक्स के बाद का सोचा हुआ है ना सेशन, Okay, उसमें okay. फिर हम प्रॉपर वर्कशॉप के हिसाब से कर लेंगे, क्योंकि सीमेन सैंपल प्रेपरेशन और एंड्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आई हैड टू टेक इन द नेक्स्ट सेशन, बट उस सेशन में प्रैक्टिकली जब अब हम तो नहीं करेंगे तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा, वो थ्योरेटिकली पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, आई थिंक, कि कैसे प्रिपेयर होता है, तो दैट विल डू प्रैक्टिकली ओनली। बल्कि किसी को अपने लैब टेक्नीशियन को साथ में लेके आना है तो यू कैन ब्रिंग अलोंग, क्योंकि सैंपल आपको पता होना चाहिए कैसे प्रिपेयर करना है, बट आप प्रिपेयर नहीं करोगे मेरे ख्याल से खुद से, आप अपनी बिजी ओपीडी को नहीं छोड़ सकते हो, तो यू विल नीड अल्टीमेटली सम पर्सन टू प्रिपेयर दैट फॉर यू। फाइन। आज का दिन हैप्पी संडे कर दे बस, अब इसके बाद सब इंजॉय करो। ओके जी, बाय बाय, Okay, ma'am. हैव Bye. अ ग्रेट डे। उसके बाद मिलते हैं, बाय बाय। Bye. Bye.